हेलो फ्रेंड्स, मैं सी दीपिका सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीएनबीएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही पॉपुलर आईपीओ का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसको कि पीबी फिनटेक नाम से जाना जाता है, लेकिन पॉपुलरली इट इज़ नोन एज पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, इस आईपीओ को आप अप्लाई कर सकते हो 1 नवंबर 2021 से, और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो है 3 नवंबर 2021। इश्यू टाइप जो है फ्रेंड्स वो है बुक बिल्ड आईपीओ। फेस वैल्यू इन शेयर्स की रहेगी फ्रेंड्स ₹2 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड वो है 920 टू 980 रुपीज पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट जो आप अप्लाई कर सकते हो वो होंगे 15 नंबर ऑफ शेयर्स के। मिनिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हो 1 के, जिसके अंदर 15 नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, जो अमाउंट करेगा 14,700 रुपीज। मैक्सिमम लॉट जब अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स वो होंगे 13 लॉट्स, जिसके अंदर रहेंगे 195 नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि कॉस्ट करेगा 1,91,100 रुपीज। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो रहेगा 5,625 करोड़ तक के, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू जो है फ्रेंड्स वो रहेंगे 3,750 करोड़ तक के, और ऑफर फॉर सेल जो रहेंगे फ्रेंड्स वो रहेंगे 1,875 करोड़ तक के। इट विल एग्रीगेट अप टू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पीबी फिनटेक लिमिटेड was incorporated as eTech Access Marketing and Consulting Private Limited in June 2008. Subsequently, इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया as PB Fintech Private Limited in September 2020, and upon conversion of a company to public limited company, इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया as PB Fintech Limited in June 2021. Company have built India's largest online platform for insurance and lending products, leveraging the power of technology, data, and innovation. It provides convenient access to insurance, credit, and other financial products, and aim to create awareness among Indian households about the financial impact of death, disease, and damage. Through its customer-centric approach, companies seek to enable online research-based purchases of insurance and lending products and increase transparency, which enables consumers to make informed choices. Company also facilitate its insurer and lending partners in financial service industry to innovate and design customized product for the consumers. Preliminary company generates revenue from these three resources, that is, first for its policy bazaar business, second for its paisa bazaar business, and for company from providing online marketing, consulting and technology services to insurer and lending partners. और फ्रेंड्स, देखते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कंपनी हैव क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर फ्रेंडली ब्रांड्स ऑफरिंग वाइड चॉइस, transparency and convenience. Its proprietary technology, data and intelligence stack, collaborative partner to insurer and lending partners. Its scales gives unique self-enforcing flywheels and strong net worth effects. High renewal rates providing clear visibility into future business and delivering superior economics. Benefits from economies of segmentation. Capital efficient model with low operating cost. Founder with clarity of purpose backed by the experienced management team. अब फ्रेंड्स, देखते हैं कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज। कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करते हैं ब्रॉडन एंड डेपन कंज्यूमर रीच इन इंडिया. It expands its playbook to replicate its platform for SME and corporate clients. Continue to invest in its brand. Neo-lending strategy to cover innovation and segment gaps. Continue to invest in digital and technology infrastructure. Pursue strategic investments and acquisitions to enhance products and service capabilities. Pursue international expansions. अब फ्रेंड्स, देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरीके से कंपनी ऑफर कर रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो कैटेगरीज हम देख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। पॉलिसी बाजार के अंदर फ्रेंड्स कंपनी तीन तरीके के प्रोडक्ट्स जो वो ऑफर करती है, दैट इज रिस्क प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस,
कॉम्प्लायंस लीड प्रोडक्ट्स जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं मोटर इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, एंड थर्डली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ये पैसा बाजार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनके अंदर इंक्लूड करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, सिक्योर्ड लोन्स एंड क्रेडिट स्कोर्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स टू कैटेगरीज ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एट 49 crore 5 lakh number of equity shares. Preference shares are 9,50,000 number of shares. Issued, subscribed and paid up share capital before this offer is 41 crore 12 lakh 34,500 number of shares. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है फ्रेंड्स वो स्टैंड कर रहा है एट 28,995.05 मिलियंस पे। अब फ्रेंड्स देखते हैं शेयर होल्डिंग बाय इट्स सेलिंग शेयर होल्डर्स। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं 9.45% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। ये अदर सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है फ्रेंड्स वो होल्ड कर रहे हैं 5.85%। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। जो भी प्रोसीड्स इस ऑफर से रिसीव होंगे, कंपनी उन प्रोसीड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करेगी उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमने देखा, ऑफर फॉर सेल भी एग्जिस्ट कर रहा है और फ्रेश इश्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑफर फॉर सेल से जो भी प्रोसीड रिसीव होगा वो पूरा का पूरा नेट ऑफ एक्सपेंसेस जो भी प्रोसीड बचता है वो पूरा का पूरा सेलिंग शेयर होल्डर को मिल जाएगा। और फ्रेश इश्यू के अंदर फ्रेंड्स कंपनी ने 5 पर्पसेस दिए हैं कि जिनके अंदर ये प्रोसीड जो वो यूटिलाइज होंगे। दैट इज, फर्स्ट इज एनहांसिंग विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ ब्रांड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। Secondly, new opportunities to expand consumer base including offline presence. Thirdly, strategic investments and acquisitions. Fourth, expanding its presence outside India. And fifth, it will utilize for general corporate purposes. अब फ्रेंड्स देखते हैं restated financial statements. टोटल एसेट्स जो थी फ्रेंड्स इन FY 18-19 वो थी 7,514.48 मिलियंस, जो कि हुई 15,759.99 इन 1920, 23,307.26 मिलियन इन 2021। ये क्वार्टर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जून 2020 के अंदर ये टोटल एसेट थी 18,555.10 मिलियन और जून 2021 के अंदर हुई 22,789.05 मिलियंस। टोटल इक्विटीज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 2018-19 ये थी 4,902.94 मिलियंस, जो कि हुई 12,658.47 मिलियंस इन 1920, 19,917.34 in 2021, 15,644.35 in June 2020, 19,521.51 in June 2021। टोटल इनकम जो थी फ्रेंड्स वो थी 5,288.07 इन 18-19, जो कि हुई 8,555.63 इन 1920, 9,574.13 इन 2021, 1,912.73 in June 2020, 2,581.74 in June 2021। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 2018-19 लॉस रह रहा है बाय 3,468.11 मिलियंस, 1920 के अंदर लॉस रह रहा है ऑफ 3,040.29 मिलियंस का, 2021 के अंदर लॉस रह रहा है 1,502.42 मिलियंस के, जून 2020 के अंदर फ्रेंड्स लॉस रह रहा है ऑफ 597.53 मिलियंस, जून 2021 के अंदर लॉस रह रहा है ऑफ 1,108.44 मिलियंस का। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो है इन FY 18-19 -3,480.80 मिलियंस, FY 19-20 के अंदर लॉस रह रहा है 3,031.36 मिलियन, FY 2021 के अंदर लॉस रह रहा है फ्रेंड्स 1,532.79 मिलियंस का, जून 2020 के अंदर रह रहा है 591.41 मिलियंस, जून 2021 के अंदर रह रहा है 1,115.55 मिलियंस।
ईपीएस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है -12.01 पर शेयर इन 1819, 8.68 -1920 के अंदर, -4.11 इन 2021, जून 2020 के अंदर रह रहा है -1.65 पर शेयर एंड -2.91 पर शेयर इन जून 2021। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 18-19 ये रहता है 287.06 मिलियंस का। 19-20 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 3639.38 मिलियंस पे। FY 2021 के अंदर रिड्यूस हुआ टू 2821.16 नेगेटिव। जून 2021 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 4327.38 मिलियंस पे। जून 2020 के अंदर यही नेगेटिव जनरेट हो रहा था बाय 338.14 मिलियंस पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन 18-19 में नेगेटिव जनरेट हो रहा था बाय 12,017.54 मिलियंस, जो कि हुआ 787.15 इन 1920, 3,753.06 इन 2021, 397.61 इन जून 2021। जून 2020 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा था बाय 11,290.49 मिलियंस पे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 18-19 ये जनरेट हो रहा था बस 7,588.13 मिलियंस। FY 19-20 के अंदर जनरेट हो रहा था बस 10,313.04 मिलियंस। FY 2021 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा है बस 233.91 मिलियंस। जून 2021 के अंदर ये नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 49.90 मिलियंस। ये जून 2020 के अंदर पॉजिटिव जनरेट हो रहा था बाय 3,497.66 मिलियंस। फ्रेंड्स नेटवर्थ अगर हम देखते हैं, तो FY 18-19 के अंदर नेटवर्थ रह रहा है बाय 4,902.94 मिलियंस। 19-20 के अंदर हुआ 12,658.47 मिलियंस। FY 2021 के अंदर हुआ 19,917.34 मिलियंस। जून 2021 के अंदर पहुंच गया 19,521.51 मिलियंस पे, और ये था जून 2020 के अंदर 15,644.35 मिलियंस पे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स, इन सारे पीरियड्स के अंदर नेगेटिव जा रहा है बाय 70.74% इन 18-19, 24.02% इन 19-20, 7.54% इन 2021। जून 2021 के अंदर रहता है 5.68% और जून 2020 के अंदर 3.82%। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है फ्रेंड्स, वो है 16.98 इन 18-19, वो हुआ 36.13 पर शेयर इन 19-20, 54.52 पर शेयर इन 2021, 51.19 पर शेयर इन जून 2021, 43.23 पर शेयर इन जून 2020। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज के अंदर फ्रेंड्स एक लाइबिलिटी रहती है ऑफ इनकम टैक्स मैटर्स, जो कि है 218 मिलियंस इन 2018-19, जो कि हुई 264.48 इन 19-20 एंड 242.03 इन 2020-21। जून 2021 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो रहती है 245.44 मिलियंस, जो कि थी 231.81 इन जून 2020। और फ्रेंड्स देखते हैं आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी के सब्सिडरीज के अगेंस्ट में और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में कितनी रहती है। लिटिगेशन जिसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व है, अदर पेंडिंग लिटिगेशन के अंदर रहते हैं 3 केसेस जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व कर रही है 60 मिलियंस की। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोसीडिंग्स जो है उसके अंदर एक केस है जिसका अमाउंट इन्वॉल्व करता है 245.44 मिलियंस। लिटिगेशन विच इन्वॉल्व सब्सिडरीज, इसके अंदर है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जिसके अंदर 6 नंबर ऑफ केस जो है वो फाइल हुए हैं और जिसके अंदर कितनी अमाउंट है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। अदर पेंडिंग लिटिगेशन जो है फ्रेंड्स, वो है 107 नंबर ऑफ केसेस जिसके अंदर अमाउंट इंक्लूड हो रही है 133.32 मिलियंस का। एक्शन बाय स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर 1 केस जिसका की अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है। अगर हम डायरेक्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अदर पेंडिंग लिटिगेशन जो है वो 2 रहते हैं जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व कर रहा है 2759.98 मिलियंस के। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप
आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल रहेगा टू डिसाइड कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को सिंपली अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे एनालिसिस, हमारे डेटा जो है वो यूज़फुल लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।